Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. And students, today we are starting a very new chapter of your syllabus, that is rational numbers. And today we are going to have the introductory class of this particular chapter. So students, talking about the starting of this particular chapter, rational numbers. What do you mean by rational numbers? What is the need of rational numbers? What are actually rational numbers? Before starting that, students, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि what is the need of the rational numbers, कि जब हमारे पास इतने सारे numbers जैसे कि natural numbers हैं, ठीक है, whole numbers हैं, fraction we have also studied that, all right students, and we have also studied about integers. हमने इन numbers के बारे में पढ़ लिया है, तो बताइए कि रेशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी इन नंबर्स को छोड़ के. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटीजर्स. पहली बात तो नेचुरल नंबर वो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऑलराइट. होल नंबर्स, द नंबर्स दैट आर इंक्लूडिंग जीरो, ओके, लाइक 0 1 2 3. And students, what were integers? Suppose if I have to say that I have the profit of rupees 100, that I said that I am having the profit of plus 100. Alright, plus indicates that I am having a profit, okay. And if I see that I have a loss of 100 rupees, then it indicates minus 100, okay. Also, if there is a distance of sea level, then above sea level, 1000 meter above sea level means plus 1000, and 1000 meter below sea level means minus 1000 meters, right students? And this is why integers were needed. Talking about fractions, if we have to say some numbers that are not complete, for example, if we have to say that we are buying about 750 gram of apple, okay, then it means that we can say this thing in the form 3/4 kg of apple, right? Sometimes it is like that, everything is not in the form of complete number, so we have to express that particular number in the form of fractions. But students, suppose I have to tell you that I want a distance that is 750 meters above the sea level, then it means plus 750 meter, okay. And if I have to say that I have the distance below the sea level, the same distance, then I am saying this like minus 750 meters. But I have to say this thing in the form of fractions, then 3/4 kilometer is right, but we cannot write it like minus 3/4 kilometer, because fractions are not at all negative, okay. So to cover the particular thing that fractions are not negative, we have extended the number system with the rational numbers, okay. इसी वजह से हमें rational numbers की ज़रूरत पड़ी थी, because sometimes we need the fractions as negative also, okay. We need them as integers also, alright students. So that is why we needed the rational numbers. So students, what is a rational number? Rational numbers are the numbers that can be written in the form of P/Q, where P and Q can't be zero, but they are integers. मतलब हमने पहले बात की थी fractions के बारे में, that P/Q क्या होते हैं उन केस में, क्या होते हैं उन दोनों केसेस में, वो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नहीं होते वो, ठीक है. नेचुरल नंबर होते हैं, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, Q जीरो नहीं होता. हम बात कर रहे थे ना रेशनल नंबर का, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि दैट कैन बी written in the form of P/Q, where Q is not at all zero, and P and Q क्या होते हैं, any नंबर्स होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर ले लीजिए, होल नंबर ले लीजिए, बट Q जीरो नहीं होता, ठीक है. ये डिस्कस होती है चीज़. ये तो होता है फ्रैक्शंस. अब रेशनल नंबर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, P/Q की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जीरो नहीं होता, और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. मतलब P भी नेगेटिव हो सकता है एंड Q भी नेगेटिव हो सकता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शंस एंड द रेशनल नंबर्स. यहाँ पे P और Q इंटीजर्स नहीं हैं, यहाँ पे ये इंटीजर्स हैं, ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेशनल नंबर? A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not at all equal to zero. Because हमने बात की है कि अगर P/Q में Q जीरो हो जाता है तो ये जो पूरी टर्म होती है ना, अनडिफाइंड हो जाती है.
अनडिफाइंड, ठीक है, और मैथ में अनडिफाइंड चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसी वजह से Q 0 नहीं हो सकता. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. अब इसका जो कंसेप्ट है काफ़ी सिमिलर है फ्रैक्शन से. अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हम उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे बना सकते हैं, ऊपर ना नीचे, मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करके, ठीक है स्टूडेंट्स. सो वी कैन हैव द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाइक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर by multiplying the numerator and the denominator of the rational number by the same non-zero integer. We obtain another rational number equivalent to the given rational number. अब अगर कोई हमें रेशनल नंबर गिवन है और उसका हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लगाना है, निकालना है, तो हम न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे दोनों के किसी सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, और इस तरह से हम उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें -2/3 का रेशनल नंबर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 × 2 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इट इज़ -4/6, राइट. देन स्टूडेंट्स वी कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो. -3 × -3 it will be 6. 2 × 3 that is 6. Minus is plus. 3 × 3 9. 1 minus. Okay, so these two are the equivalent rational numbers. All right students, looking at the next thing that we are going to discuss, that is positive and negative rational numbers. अब positive और negative rational numbers क्या होते हैं? So students, the positive rational number are the numbers whose denominator and the numerator are the both positive integers. All right students, both the numerator and the denominator of this number are positive integer. Such a rational number is called पॉजिटिव रेशनल नंबर, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. ओके, अब स्टूडेंट्स नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव हो. ऑल राइट स्टूडेंट्स, so the denominator is positive integer, such a rational number is called negative rational number. यहाँ देखिए डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, ठीक है. अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे स्टूडेंट्स तो नेगेटिव कट तो जाएगा ना आपस में, तो इट विल बी 5/7. अब 5/7 क्या हुआ, दोनों के में पॉजिटिव आए तो ये तो पॉजिटिव बन गया. सो फॉर हैविंग द नेगेटिव रेशनल नंबर वी हैव द डिनोमिनेटर पॉजिटिव. ऑल राइट स्टूडेंट्स, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में, ठीक है. सो नंबर 0 इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रेशनल नंबर. इसमें बोला गया कि जो 0 होगा ना वो एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जो कि ना ही पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार एज इट इज़ ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पेपर में आ जाती है, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. सो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, अगर मुझे 1/2 लिखना है, मतलब 1 I have divided 1 into 2 parts. मतलब ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, ये क्या है 0.5 है ना, तो मतलब ये लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, मतलब 1/2 मतलब 2 parts, 1 first part out of the 2. सो इसके अंदर मैं 2 पार्ट्स करूँगी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट हुआ ना और ये सेकेंड पार्ट, तो हम किसकी बात करें, 1/2 की. सो दिस इज 1/2. ओके, ये 1 को मैं 2/2 लिख सकती हूँ ना, I can write this one as 2/2 because वो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है. So इस तरह से मैं इसको नंबर लाइन पे शो कर सकती हूँ. Alright students, now we'll be having the thing rational numbers in a standardized form. अब किसी भी रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. To have the rational number in the standard form, we must have the non-common factor. Okay, like if we are talking about the numerator and the denominator, तो अगर हम बात कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की, तो उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंड, उनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है. डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव नंबर, ठीक है. सो अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर and the numerator and the denominator have no common factor other than 1. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1, एंड ऑल्सो द डिनोमिनेटर शुड बी द पॉजिटिव इंटीजर. तभी हम किसी रेशनल नंबर को बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर रेशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
We have an example to reduce minus 45 upon 30 to the standard form. अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरह से बता सकती हूँ. फर्स्टली हम सिंपल मेथड करते हैं. सो माइनस 45 अपॉन 30. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट दे हैव वेरी मच फैक्टर्स इन कॉमन. सबसे पहले तो हमें 5 ही दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 5 एंड 0 है, तो मतलब सबसे पहला कॉमन फैक्टर तो 5 ही है. ठीक है, सो विल डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ फ्रॉम 5. ओके, सो माइनस 45 अपॉन 5 इज माइनस 9. माइनस 9, राइट. 30 divided by 5 is 6. Okay, now students, 9 and 6 they have further the common factor of 3, right. 3 की टेबल पे 9 भी आता है and 3 की टेबल पे 6 भी आता है, so we'll divide by 3 on both the sides, right. That is from the numerator and the denominator both. So we'll have 9 divided by 3 is minus 3, right. Minus 9 divided by 3. 6 divided by 3 is 2. Now 3 and 2 doesn't have anything in common. So this is the basic step. Okay, you can have the division step by step. Also, what you can do, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें दिख रहा था कि 45 माइनस 45 अपॉन 30, 15 के टेबल पे भी कैंसिल हो रहे हैं ना, सीधा सीधा. 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30 एंड 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45. So they can be divided on the table of 15 directly, right, and it can be written as minus 3 upon 2, right students. लेकिन ये तो हमें यहाँ पे पता लग गया. जनरली कैसे पता लगेगा हमें, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 5 को, तो क्या आता, 15 आता ना, राइट. और स्टूडेंट्स ये 15 क्या है, ये 45 और 30 का HCF है. ठीक है, दिस इज HCF. 15 क्या है, HCF. तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर आपको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अगर उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, फर्स्टली तो वो करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करना होता है किससे, HCF से. ओके, फिर जो भी आपका आंसर आएगा ना, वॉट एवर बी योर आंसर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म. ओके, वो अपने आप ही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में आएगा, राइट स्टूडेंट्स. जो भी आंसर आएगा दैट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म. नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स हमें दे रखा हो कोई डिनोमिनेटर जो कि नेगेटिव है, मतलब अब डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो उस केस में हम डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे बाय माइनस HCF. जो भी HCF आएगा ना उसको नेगेटिव बना दो. ठीक है, माइनस HCF करेंगे और उस केस में जो भी आंसर आएगा वो होगा क्या, आपका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में. ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन क्या है, माइनस 45 अपॉन 30. ठीक है, यहाँ पे मैंने जो सीधा सीधा स्टेप किया, अब मैं आपको बताती हूँ कि HCF कैसे आता है. HCF हमें पता है, वैसे तो हमने पढ़ रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, कैसे देखते हैं हम, 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बताइए. 45 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है. ठीक है, और किसके टेबल पे आता है, 4 पे नहीं आता. ठीक है, 5 पे आता है, 6 पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, 9 पे आता है ना सीधा. तो 9 इंटू 5 45, फिर सीधा 15 पे आता है. ठीक है, 1 पे तो आता ही आता है, 1 तो है ही है. ठीक है, सो 1 3 5 9 एंड 15 एंड 45. ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे 45 आता है. ठीक है, 30 की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो 30 आता है 1 पे, 2 पे, 3 पे, और बताइए 4 पे नहीं आता, 5 पे आता है, 6 पे आता है. ठीक है, 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, 9 पे नहीं आता, 10 पे आता है. ठीक है, 10 इंटू 3, फिर 15 पे आ रहा है, फिर 30 पे आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स. अब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है. यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, नहीं है. ठीक है, यहाँ पे 30 है, लेकिन यहाँ पे 30 है, नहीं है. तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 15 और इधर भी 15. तो 15 यहाँ से और 15 यहाँ से, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया स्टूडेंट्स, 15 बन गया ना. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, HCF पता लग गया कि 15 आ रहा है. HCF 15 है, माइनस 45 अपॉन 30.
अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम सीधा सीधा उसको HCF से डिवाइड करेंगे. 45 डिवाइडेड बाई 15 इज 3, 30 डिवाइडेड बाई 15 इज 2. अब ये सीधा सीधा क्या होगी, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होंगे. अगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये क्वेश्चन 45 अपॉन -30 होता, अब डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो उस केस में मैं क्या करती, जो भी HCF आए ना उसको माइनस कर देती, -15 अपॉन -15. ठीक है. अब 45 डिवाइडेड बाय -15 इज -3 एंड 15 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 15 इज 2. नाउ माइनस माइनस इज प्लस, तो ये क्या आ गया, -3 अपॉन 2. उस केस में भी आंसर सेम आया. ठीक है. इस तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये सेम क्वेश्चन है, इन दोनों को भी हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पे HCF को हमें क्या करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखना है. ठीक है. सो फर्स्टली वी हैव द HCF ऑफ 36 एंड 24. 36 किस किस के टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे, देन 5 पे नहीं आता, 6 पे आता है, 6 इंटू 6, 7 पे नहीं आता, 8 पे आता है, नहीं आता, 9 पे आता है, येस, 9 इंटू 4, देन 3 इंटू 12, देन 18 इंटू 2, देन 37 itself. ओके. अब 24 की हम बात करते हैं, तो 24 किस किस के टेबल पे आता है, 1 2 3 4 6, then 8 12 and what is this one, 24. अब सबसे बड़ा फैक्टर बताइए दोनों में कौन सा आ रहा है, 24 इसमें है, नहीं है. अब यहाँ से 12 यहाँ पे भी है और 12 इधर भी है. सो स्टूडेंट्स HCF क्या आ रहा है इनका, 12. ओके. अब मैं क्या करूँगी, 36 अपॉन -24 के अंदर डिवाइड करूँगी 12 एंड 12. बट क्योंकि नेगेटिव है डिनोमिनेटर, तो दोनों साइड पे क्या लगेगा, माइनस एंड माइनस. 36 डिवाइडेड बाय 12 इज -3. 24 divided by 12 is 2. Now students, this minus and minus will be consumed, as minus divided by minus is plus. Okay, so the answer is -3 upon 2. This is in the standardized form because इनके अंदर numerator और denominator में कुछ भी common में नहीं है, plus the denominator is a positive integer. Okay, so this is in the form of standardized form. Right students, looking at the second question, what is that, -3 upon -15. ओके. अब इस क्वेश्चन में देखिए माइनस और माइनस आप सीधा सीधा खुद ही काट सकते हो. ठीक है. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 upon 15. अब ये तो सीधा सीधा 3 के टेबल पे काट दो, क्योंकि 3 और 15 का HCF तो सीधा सीधा 3 है ही ना, बिकॉज 1 और 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 3 के फैक्टर्स है. 15 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 3 5 एंड 15. राइट. सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 3. HCF क्या हुआ, 3. तो डिवाइड कर दिए 3 से बोथ साइड्स पे. 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज 5. So 1 upon 5, this is the standardized form. Alright students, next is comparison of rational numbers. अब हम दो rational numbers को कैसे compare कर सकते हैं, हमें ये देखना है. Students, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, if we are comparing any two positive rational numbers, for example students 2 upon 4 है and 5 upon 4 है. अगर denominator जो है वो same है, ठीक है, तो वी हैव द कंपैरिजन थ्रू द न्यूमरेटर्स. राइट. तो इस केस में सबसे बड़ा ये हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल फ्रैक्शंस वाली बात है, सेम. इफ वी आर कंपेयरिंग एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, देन इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, वी जस्ट लुक एट द न्यूमरेटर. द बिगर द न्यूमरेटर इज एंड द बिगर द रेशनल नंबर इज. ओके. सो यहाँ से अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देख के आप पता लगा लोगे कि कौन सा बड़ा है. अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ इसकी, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे इसको 2 upon 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 upon 4 हो गया ना. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया
तो बताइए 2/4 बड़ा है या 3/4 बड़ा है? 4 and 4 तो सेम है, तो न्यूमिनेटर देखेंगे ना, 3 बड़ा है तो मतलब पता लग गया ना कैसे क्या चीज़ बड़ी है. तो इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू positive rational numbers then we have the comparison as it is as we do in the rational numbers. okay? अब देखिए अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता -1/4 एंड -2/4 तो कौन सा बड़ा था? डिनोमिनेटर देखो दोनों साइड पे, डिनोमिनेटर को देख लिया हमने. अब 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? 2 बड़ा है ना, तो मतलब ये नहीं बोलना कि 2 बड़ा है तो बड़ा नंबर 2 है तो इस केस में ये बड़ा होगा. ये बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जितना कोई नंबर नेगेटिव होता जाता है उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है. ठीक है, तो उस केस में कंपैरिजन करते हुए कौन सा ज़्यादा बड़ा आएगा? जो छोटा होगा वो ज़्यादा बड़ा आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्मॉलर होगा वो बड़ा आएगा. ठीक है, हाउ टू कंपेयर टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स? वी कंपेयर देम इग्नोरिंग देयर नेगेटिव साइंस एंड देन रिवर्स द ऑर्डर. पहले आप रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स में नेगेटिव भूल जाओ. बड़ा कौन सा था? 2/4 था ना, अब उसका उल्टा होगा बड़ा. ठीक है, अब नेगेटिव का देख रहे हो तो उसका रिवर्स हो जाता है ऑर्डर. ठीक है, एज इट इज जो काम कर रहे थे पॉजिटिव में वो भी करो, नेगेटिव दोनों नेगेटिव को देख रहे हो तो बाद में ऑर्डर को रिवर्स कर दो. ये तो होता है सीधा सीधा नेगेटिव इंटीजर्स का. अब अगर स्टूडेंट्स में बात करती हूँ, अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, अगर वी हैव 1/4 अ पॉजिटिव नंबर एंड इफ वी हैव 1/6 अ नेगेटिव नंबर, तो हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होता है वही बड़ा आता है. ठीक है, any time the positive number is the bigger number. All right, so in this particular way you can have the comparison of the two rational numbers. If you have one negative and one positive rational numbers, then it is clear that if you have the positive number then it is bigger. Okay, every time. If we are comparing two positive numbers, then if the denominators are same, just look at the numerators, and the bigger the numerator is, the bigger the number will be. Okay, if the denominators are not the same, just make sure the denominators are same, make them same, and then have the comparison. If you have to compare to negative rational numbers, then just do the same case as in the case of the positive numbers. Ignore the negative sign and whatever be the answer, then just reverse the order. ठीक है, जो भी आंसर आता है नेगेटिव साइन को इग्नोर करके, अब आपको एकदम से पहले आप सॉल्व करते रहो, इग्नोर करो नेगेटिव को. जब आंसर लिखने लगोगे ना तो आपको याद आ जाएगा अरे ये तो नेगेटिव था, तो मतलब उल्टा होगा उस केस में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. ऑलराइट, लुकिंग एट द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 3, डू 4/-9 एंड -16/36 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स. अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों रेशनल नंबर्स सेम हैं. देखिए 4/-9, अगर मैं इसको 4 and 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे -4 से और -4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या देखिए 4 × 4 16 -9 × 4 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब इसकी हेल्प से मैंने ये बना लिया. ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ, -16/36. अगर मैं इन दोनों केसेस में -4 और -4 से इनको डिवाइड कर दूँ. ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4, माइनस माइनस प्लस. ओके, 36 डिवाइडेड बाय 4 इज 9 एंड अ नेगेटिव. सो दिस इज -4/-9. मतलब मैंने इससे ये बना लिया और इससे ये बना लिया. ओके, सो इट मीन्स दैट दे रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर. सो राइट इट लाइक दैट. यस, they represent the same rational number. All right students, next we are going to discuss example 4. List 3 rational numbers between -2 and 1. okay, -2 and -1. अब स्टूडेंट्स क्या कीजिएंगे, हम इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाएंगे, 5 बनाएंगे. ठीक है, कोई भी 3 लेने हैं तो कुछ भी बना सकते हो आप. 4 आप चाहे इनके डिनोमिनेटर को 4 बना दो, चाहे 5 बना दो. फॉर एग्जाम्पल हम 5 बनाते हैं. मेक देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 5. सो क्या करेंगे हम, ठीक है, इनको
5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों केसेस में, ठीक है. इट विल बी -10/5 एंड दिस इज -5/5, ठीक है. अब हमें पता है -2 छोटा होता है एंड -1 बड़ा होता है, ठीक है. तो नंबर लाइन हमेशा राइट साइड पे जाती है, तो वो पॉजिटिव होती जाती है, ठीक है. तो अब हमें इसके अंदर कोई भी 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. 4 करके दिखाते हैं, ठीक है. इधर से इंक्रीजिंग करना शुरू कीजिए, इधर से डिक्रीजिंग. ये लो 4 नंबर्स कोई भी इंसर्ट कर दिए हमने. 3 बोला था, 4 कर दिए, ठीक है. अपनी मर्जी है, ठीक है. अगर हमें एग्जैक्टली 3 करने थे तो हमको इनका डिनोमिनेटर 4 लिख देना था, ठीक है. अगर आपको बोला जाए कि 2 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करो, देन यू कैन मेक द डिनोमिनेटर्स 3, ओके. इस तरह से आप नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है. इसको आप लिख सकते हो ना -2, इसको आप लिख सकते हो -1, ठीक है. इसके बीच में क्या आएगा, ठीक है. In this particular way, students, you can have the insertion of various rational numbers in between two numbers. Okay, looking at the next question, students. Write 4 more numbers in the following pattern. अब ये पैटर्न दे रखा है और उस पैटर्न के अंदर हमें बाकी 4 और नंबर बताने हैं. Have a look at this particular thing, students. हर एक पैटर्न के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन रिलेशन होता है. यहाँ पे मैं -1/3 को 1 and 1 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. ये क्या बन रहा है, -1/3, राइट. नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट है. अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, -2/6 मतलब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. सो -1/3 इंटू 2/2 दैट इज -2/6, राइट. इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करके ये बन गया. अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई होके ये बनेगा -1/3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज -3/9. देखिए बन रहा है ना. इधर 4 मल्टीप्लाई होगा, -4/12 हो रहा है ना. अब हमें बोला जा रहा है कि सेम पैटर्न को बनाकर कोई 4 एक्स्ट्रा नंबर्स लिखिए, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, 5th के अंदर क्या करेंगे, -1/3 इंटू 5 इंटू 5, राइट. -5/15, then -1/3 into 6 into 6, that is -6/18. Next, -1/3 into 7 into 7, that is -7/21. Next, students, -1/3 into 8 into 8, that is -8/24. अब इस तरह से हमने 4 नंबर्स और बना दिए. यहाँ तक कितना था, -4/12 तक था. अब इसके बाद हमने 4 एक्स्ट्रा बना दिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था. और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स खत्म होती हैं. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग एंड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, टिल देन स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस हार्ड एट योर होम. विल बी मीटिंग इन योर नेक्स्ट क्लास. Till then, have a nice day. Bye bye.